welcome. You're watching the News Hour Agenda and today is a very special edition. I'm Padmaja Joshi and exactly 14 days from now you will see the Grand Bhumi Pujan, the groundbreaking ceremony for the construction of a grand Ram Mandir at the birthplace of Lord Ram in Ayodhya. With work starting in a month from now, of course it will be quite some time before devotees finally get to enter, finally get to see with their eyes the actual Ram Mandir. But today on the News Hour Agenda, we show you the first pictures of the actual temple. What will it look like? 3 floors of absolute grandeur. The very first pictures of the final Mandir plan. When you enter, if you are a devotee, this is the first look of the Ram Mandir that you will see. Now let me show you picture number 2, where you can see how over the years, the number of devotees who are expected have changed. Naturally, the footfalls will increase. The people, the Ram Janmabhoomi Nyas expects that millions of people will be visiting every week. Naturally, then the mandir also needs to be bigger, and which is why the area, the height, the number of mandaps, all of that has been increased. Where in this entire structure will Ram Lala actually be sitting? Where will he be Virajman? Who better to take you through the entire mandir? Remember, it's only the inauguration which will happen, the groundbreaking that will happen on August 5. But today, you can do a virtual tour of the Bhavya Ram Mandir. And who better to talk about it than the man who actually shaped the dreams of millions of people, the architect of the Ram Mandir. The News Hour at 10. Debate number 1 on Times Now. Super Prime Time. Just a fortnight left for the Bhumi Pujan of the Grand Ram Mandir at the Ram Janmabhoomi in Ayodhya. And everyone wants to know, what is it going to look like? Who could be better to take us through it than the people who have literally given shape to the dreams of a billion? We've got with us a member of the architecture team, the architects who have actually designed the main mandir, the Ram Lala's mandir, and the temple complex. Ashish Sompura, thank you very much for speaking to us. सबसे पहले आप हमें बताइए, मेन जो मंदिर है, राम लला का मंदिर, किस तरीके का दिखेगा? जी, रामलला का मंदिर जो है वो नागर शैली में रहेगा. जो पुराना डिज़ाइन था उसी को हमने ये एक्सटेंड किया है, जो पापा ने 30 साल पहले डिज़ाइन किया था. द गर्भगृह जो है वही रहेगा, उसके ऊपर का शिखर का शेप वही रहेगा, ऑक्टागोनल शेप का रहेगा. उसके अलावा जो आगे का गुड़ मंडप है वो भी सेम रहेगा, लेकिन अभी के हिसाब से जो 30 साल पहले और आज के इस माहौल के अगर देखा जाए तो पॉपुलेशन बढ़ा है, ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत इजी हो गया है. तो फुटफॉल एक बहुत बड़ी समस्या थी हमारे लिए कि इतना फुटफॉल को कवर करने के लिए हमें इसमें थोड़े से चेंजेस तो करने पड़ेंगे. तो उस हिसाब से हम लोगों ने थोड़ा सा फ्लोर एरिया बढ़ाया है और बाकी का स्वरूप तो वही रहेगा जो पुराना था. आप हमें दिखा सकते हैं नागर शैली क्या होती है और दिखने में कैसी लगेगी? ये पूरी जो मंदिर का कॉम्प्लेक्स है, इसको अगर आप हमें दिखा सके कि दिखने में कैसा होगा. ये जैसे ये आप देख रहे हैं, दिस इज़ द पर्सपेक्टिव व्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर टेम्पल. वो है, ये जो है वो शिखर है मेन, जो पुराना उस हिसाब से था वही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं. आगे का ये जो है वो गुड़ मंडप है जिसे बोलते हैं, वो भी एक फ्लोर बढ़ाया गया है. वैसे क्योंकि एक्सपांड करते हैं तो साथ में वो थोड़ा हाइट भी हमको बढ़ाना पड़ता है, तो इस हिसाब से एक फ्लोर बढ़ाएगा. बाकी शेप और वही सेम रहेगा. और आगे एक मंडप ये एक बढ़ाया गया आगे, और दूसरा जो है वो दोनों साइड पे एक एक और मंडप बढ़ाए गए, जिससे कि यात्रियों को थोड़ी सहूलियत हो घूमने और उसके लिए. जी, ये मंडपों के नाम इस तरह से क्यों रखे गए हैं? कि कोई नृत्य मंडप है, कोई गूढ़ मंडप है, क्या होगा इन मंडपों के नीचे?
बेसिकली तो ये तो नॉर्मली जो अभी के हिसाब से तो पब्लिक मूवमेंट के लिए होता है, लेकिन पुराने जो उस नृत्य मंडप में था कि भगवान के सामने नृत्य और वो सब चलता है, तो उसके लिए वो नृत्य मंडप लगाया था। आगे एक रंग मंडप होता है, जैसे कि ये रंग मंडप है, फिर नृत्य मंडप आएगा, फिर ये गुड़ मंडप। बेसिकली ये आर्किटेक्चरली आप अगर देखने जाए तो ये हायरार्की है स्पेसिस की, जैसे ओपन स्पेस में से आप क्लोज स्पेस में गए, क्लोज स्पेस में से मोर क्लोजर स्पेस में गए, जैसे गुड़ मंडप जो चारों तरफ से बंद होता है, और जी ये गर्भगृह जिसके अंदर होता है वो बिल्कुल विंडो नहीं होती है, जैसे डार्केस्ट प्लेस। तो आपका कंसंट्रेशन अपने आप उस हिसाब से मंदिर के भगवान की तरफ चला जाता है, उसी के लिए ये पर्टिकुलर हायरार्की दी गई है इसके अंदर। रामलला किधर पर विराजमान होंगे इस पूरे कॉम्प्लेक्स में, अगर आप हमें दिखा सकें? जैसे आपको बता दूं तो ये जैसे ये रहा पूरा ये ग्राउंड फ्लोर है, तो ग्राउंड फ्लोर में ही रामलला का रहेगा। जैसे ये ग्राउंड फ्लोर है तो यहीं पे ये इस जगह पे गर्भ पे रामलला की मूर्ति रहेगी। फर्स्ट फ्लोर पे राम दरबार रहेंगे, और सेकंड फ्लोर वो पब्लिक के लिए नहीं है, वो सिर्फ हमें प्रोपोर्शनेट के हाइट बढ़ाने के लिए उसको लेना पड़ा है। तो जब कोई भक्त कोई दर्शन करने के लिए आएगा तो क्या वो परिक्रमा कर पाएंगे इस मंदिर कॉम्प्लेक्स की? क्या हम सीधे गर्भगृह तक जा पाएंगे? किस तरीके से एक डेवोटी का, एक भक्त का एक्सेस होगा यहाँ पे? जैसे आप बताया जाए कि एक्सेस यहीं से होगा, इन फ्रंट वहीं से होगा, ये पूरा थ्रू। और हमारे कुछ शास्त्र के नियम होते हैं कि जिसमें मूर्ति का जो है दृष्टि वो हमें एक पर्टिकुलर लेवल से लेके जाना होता है कॉलम के। तो जब भी कोई अभी आदमी एंट्री होगा यहाँ से, तो उसको यहीं से रामलला के दर्शन होंगे, तो वो सीधे चलते चलते अंदर आएगा। और ये कवर्ड परिक्रमा है, तो अंदर गुड़ मंडप से ही ये पूरे गर्भगृह की परिक्रमा कर सकते हैं। और उसके बाद एक पोडियम भी है जो 20 फीट वाइड है, जो इसके बाहर रहेगा, उधर भी आप प्रदक्षिणा कर सकते हैं पूरे मंदिर की। आशीष जी, ये जो मेन टेम्पल है ये किस मटेरियल का बनाया जाएगा? जब हम कारसेवकपुरम में इतने सालों से हमने देखा है, वहाँ पर कभी भी आप जाए, सुबह शाम रात, बारिश हो रही हो, सूरज चमक रहा हो, वहाँ पर लोग बैठ करके वहाँ पर नक्काशी करते रहते हैं। क्या वही जो शिलाएं हैं उनका इस्तेमाल इस मंदिर में किया जाएगा? डेफिनेटली वही शिलाओं का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जो मूल डिज़ाइन था जो पापा ने 30 साल पहले बनाया था, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं, वो तो वही रहेगा। ये एक्सपांशन ही है, आप समझ लीजिए ओरिजिनल डिज़ाइन का ये एक्सपांशन है। तो वो चीज़ जो है वो तो वही, सब पत्थर वही यूज़ रहेंगे, वही कार्विंग इधर भी होगी, जो भी एक्सटेंशन भी होगा वो उसी कार्विंग के बेस पे आगे होगा। और ये बंसी पहाड़पुर स्टोन है जो राजस्थान से आता है, वही स्टोन आगे भी इसी कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाला है। जो कार्विंग होती है उसका भी कुछ क्या माइथोलॉजिकल रिलीजियस सिग्निफिकेंस होता है? क्या सोचकर कार्विंग की जाती है? उसमें क्या क्या मोटिव्स बनाए जाते हैं? जैसे कार्विंग में तो क्या है कि शिल्प शास्त्र के हिसाब से कुछ जो मंडोवर है, जिसको ये दीवार बोलते हैं, वो मंडोवर में कुछ पार्ट्स वो फिक्स होते हैं उसके, तो उसी हिसाब से वो शास्त्रों के हिसाब से ही वो लेयर्स बनते हैं और उसके अंदर कार्विंग होती है। बेसिकली जो भी प्रेडिक्शन हमको करना है आगे, या फिर जो भी डिपिक्ट करना है, वो आइकोनोग्राफी के थ्रू होता है, जो मूर्तियां बनेंगी उसके अंदर। तो जैसे ये राम जी का मंदिर है, तो राम की अलग अलग मूर्तियां हैं, सीता जी की हैं, दशावतार की हैं, वो सब प्रिडिक्ट वो कॉलम्स पे, जैसे इस कॉलम के यहाँ पे टोटल एक कॉलम में 16 मूर्तियां रहेंगी, तो उसी आइकोनोग्राफी में, उसी मूर्तियों में उसको हम लोग बयां करेंगे पूरा। पर ये तो रामलला की बात हो गई, रामलला को गर्भगृह में रखा जाएगा, पर जो सीता जी हैं, लक्ष्मण हैं, हनुमान हैं, वो भी इसी कॉम्प्लेक्स में होंगे या उनके लिए अलग मंदिर बनेगा जो पूरा आपका जो पूरा जो फैला हुआ है कॉम्प्लेक्स उसमें? नहीं, इसमें तो सिर्फ रामलला और राम दरबार ही रहेंगे। बाकी सीता जी का बनना है, हनुमान जी का मंदिर बनना है, काफ़ी और अलग मंदिर बनने हैं, वो कॉम्प्लेक्स में अलग से बनेंगे। इतना कुछ काम अभी तक हो चुका है, सालों से ये काम चला आ रहा है, अब फाइनली गो अहेड मिला है। और ना पर्सनल नोट में आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने ये इनहेरिट भी किया है अपने फादर से, इस डिज़ाइन को इन अ सेंस आपने फाइनल टचेस दिए हैं। जब
वर्डिक्ट आया और आपको पता चला कि फाइनली जो आप अपने कंप्यूटर पे, पेपर पे इतने सालों से देख रहे हैं उसको अपनी आंखों के सामने देखेंगे, आपको पर्सनली कैसा लगा और आपके पिताजी को कैसा लगा? जी सही आप बताएंगे तो ये प्राउड की बात है कि जैसे मैं आपको बताऊं कि मेरे दादाजी ने सोमनाथ मंदिर बनाया था। तो सोमनाथ मंदिर बनाने और एक ऐसा ही बड़ा मंदिर जो इतने सालों के संघर्ष के बाद जो हम लोग हमारे टीनेज के टाइम पे उसका देखते थे कि ये बनना है और फिर इसके साथ जुड़ने का जो समय आया और ये फिनिशिंग टच हमने दिया, तो एक प्राउड मोमेंट है हमारे लिए कि उसके बाद ये मोमेंट है कि अभी हमारा क्रिएशन रियलिटी में होने जा रहा है। और एक ये भी बहुत एक इसको कोइंसिडेंस कह लें कि सोमनाथ जी के पीछे सरदार पटेल का बहुत बड़ा हाथ था और राम मंदिर उस वक्त बनने जा रहा है जब मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। दोनों गुजरात से कनेक्टेड हैं और आप भी। हाँ, ये कोइंसिडेंस है और ये भी हमारे लिए बहुत, गुजरात के लिए भी प्राउड की बात है और हमारे लिए भी प्राउड की बात है कि इसके साथ हम सब जुड़े हुए हैं। आखिर में आपसे पूछना चाहूंगी, सबसे ज्यादा लोग ये जानना चाहेंगे कि कम से कम रामलला के दर्शन कब से शुरू हो सकते हैं, कब ये मंदिर में पूरा कॉम्प्लेक्स तो बनने में शायद वक्त लगेगा, बट जो मेन मंदिर है वो कब तक दर्शन के लिए खुल जाएगा? जी, ये करीबन इसको अभी आप टाइम भी आप देख रही हैं कि किस हिसाब से है, टाइम भी थोड़ा चल रहा है, लेकिन पूरे काम को बनने में 3 से 3.5 साल तो लग ही जाएंगे, क्योंकि काफ़ी ह्यूज टेम्पल है तो उसका मटेरियल एक्वायर करना, उस पर कार्विंग करना, फिर उसका इंस्टॉलेशन करना, तो इन सब चीज़ों में जो टाइम जाता है वो कम से कम 3 से 3.5 साल तो लग ही जाएंगे। तो उसका भूमि पूजन के लिए मोदी जी तो जा रहे हैं, ऐसे अभी सुनने में आया है, आपका परिवार भी वहाँ होगा? जी, अभी तक तो कुछ इंटीमेशन नहीं है, कुछ होता है तो जाना पड़ेगा। ओके, आशीष जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। द फर्स्ट टाइम यू हर्ड द फुल प्लान इन फ्रंट ऑफ योर आईज एंड नॉट जस्ट हर्ड अबाउट इट बट सीन एवरी माइन्यूट डिटेल from the stone that is going to be used to the kind of carving that will be done, and most importantly, where will Ram Lalla himself be seated? Let's hope that the beginning happens very quickly and the completion happens just as quickly. Thank you very much for joining us.